बाइडेन से कहा है अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे। You know, I just concluded several hours meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we've had. I've been meeting with President Xi since both of us were vice president over 10 years ago. Our meetings have always been candid and straightforward. We haven't always agreed, but they've been straightforward. And today, build on the groundwork we laid over the past several months of high-level diplomacy between our teams, we've made some important progress, I believe. First, I'm pleased to announce that after many years of being on hold, we are restarting cooperation between the United States and PRC on counter-narcotics. In 2019, you may remember, China took action to greatly reduce the amount of fentanyl shipped directly from China to the United States. But in the years since that time, the challenge has evolved from finished fentanyl to fentanyl chemical ingredients and pill presses, which are being shipped without control. And by the way, some of these pills are being inserted in other drugs like cocaine. A lot of people are dying. युद्ध से जो परेशानियां और जो चैलेंजेस सामने आए हैं उसका जो बाइडेन जिक्र कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग मारे गए हैं उसका जिक्र करते हुए जो बाइडेन. So today, with this new understanding, we're taking action to significantly reduce और खास तौर पर दोनों देशों के बीच chemicals and pill presses from China नई to the समझ Western को Hemisphere. पैदा करने की कोशिश It's इस going to मुलाकात save के जरिए lives, की and I गई. appreciate President Xi's commitment on this और issue. साथ ही साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से जो कदम उठाया गया उसको अप्रिशिएट करते हुए उसकी तारीफ करते हुए जो बाइडेन. I also want to thank the bipartisan congressional delegation to China, led by Leader Schumer, in October, for supporting this effort so strongly. और इसके साथ साथ अमेरिका के डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल का भी शुक्रिया कर रहे हैं जो बाइडेन, जिन्होंने इस बातचीत को आगे बढ़ाया. Direct contacts. As a lot of you press know who follow this, that's been cut off, and it's been very worrisome. That's how accidents happen, misunderstandings. So we're back. और जो बाइडेन की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग जो गलतफहमी उसका भी जिक्र किया गया है और जो दोनों देशों के बीच तनाव हाल फिलहाल में नजर आया उसका भी जिक्र करते हुए जो बाइडेन. With a country like China or any other major country, and so I think we're made real progress there as well. चीन जो कि एक बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे. As many of you who travel with me around the world, almost everywhere I go, every major leader wants to talk about the impact of artificial intelligence. These are tangible steps in the right direction to determine what's useful and what's not useful, what's dangerous and what's acceptable. क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये तय करना आज के हालात में बहुत जरूरी है और इस कदम की तरफ दोनों देश आगे बढ़ें. We'll continue to compete vigorously with the PRC, but we'll manage that competition. कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हमारे हैं और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं. Where it's possible, where our interests are coincide, we're going to work together. कई हमारे साझा इंटरेस्ट है, उस पर भी जो बाइडेन की तरफ से बात कही जा रही है. In people in China and the United States, but the rest of the world expects that of us, and that's what the United States is going to be doing. Today, President Xi and I also exchanged views on a range of regional and global issues, including इसके अलावा जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई है और खास तौर पर गाजा और यूक्रेन को लेकर जो बातचीत है वो की गई है. ये जो बाइडेन की तरफ से बताया गया. Detained and ex-banned U.S. citizens, human rights and coercive activities in the South China Sea. We discussed all three of those things. साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बात हुई है. Hopefully we can get them released as well. और उम्मीद इस बात की है कि बहुत जल्द इस पर कोई आम सहमति या फिर कुछ ठोस होता हुआ नजर आएगा. It's clear that we object to Beijing's non-market economic practices and that disadvantage American businesses and workers, and that we'll continue to address them. And I named what I thought a number of those were. हालांकि ताइवान के साथ जो अमेरिकी इंटरेस्ट है उसे लगातार हम एड्रेस करेंगे. Implementing the approach in the best traditions of American diplomacy. We're talking to our competitors, and the key and just talking, just being blunt with one another, so there's no misunderstanding, as a key element to maintaining global stability and delivering for the American people. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्थिरता को कैसे बनाकर रखना चाहिए, इस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है.
to keep the lines of communication open, including between President दोनों देशों के बीच जो संचार है he and I agreed उसको ओपन रखने की, उसको phone call खोलने की जो बात है वो की गई है। and that's now I'd like to be able to take some questions if I may. और अब मैं पत्रकारों के कुछ सवाल Dimitri of लेना Financial चाहूंगा। Times has the first question. पहला सवाल। Thank you. And as an Irishman, I apologize for bringing the rain. Well, holy God, I wouldn't have called on you if I'd known that. No, I'm teasing. Go ahead, fire away, Dimitri. President Biden, given that America is playing a key role in two major global crises, in Ukraine and in Gaza, does that alter your previous commitment to defend Taiwan from any Chinese military action? And did Xi Jinping outline the conditions under which China would attack Taiwan? Look, I reiterate what I've said since I've become president, what every previous president of late has said, that we maintain the agreement that there is a one China policy, and that I'm not going to. सवाल ये पूछा गया था ताइवान के मसले पर और इस पर जो बाइडेन जवाब देते हुए कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी जो उसकी रही है उसको मेंटेन करके चलता है। Next question, sorry, was Bloomberg. It appears, among other issues, that your agreement with President Xi over fentanyl will require a lot of trust and verification to ensure success, curbing those drug flows. I'm wondering, after today and considering all that you've been through in the past year, would you say, Mr. President, that you trust President Xi? And secondly, if I could, on Taiwan, you and your administration officials have warned President Xi and China about interference in the upcoming elections. I'm wondering what would the consequences be if they do in fact. ताइवान में होने वाले चुनाव को लेकर ये सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ आपसी ट्रस्ट को लेकर ये सवाल पूछा गया। And we had that discussion as he was leaving. Look, देखिए हमारी हर मसले पर बातचीत हुई है। I trust but verify, as that old saying goes. That's where I am. And we're in a competitive relationship, China and the United States. देखिए But अमेरिका और चीन की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो प्रतिस्पर्धा के भी हैं। manageable, so it doesn't result in conflict. That's what I'm all about. That's what this is about. To find a place where we can come together and देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिस पर पूरी तरह से रिजोल्यूशन हो पाए ये मुमकिन है, लेकिन हमें एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी, एक ऐसा पॉइंट पर हमें आना पड़ेगा जहां पर दोनों देश आम सहमति बना पाए। We agreed that fentanyl and its precursors will be curbed substantially, and the pill presses. That's a big movement. They're doing that, and by the way, I guess I shouldn't identify where it occurred, but John, I know two people near where I live. Their kids literally, as I said, strange, they woke up dead. Someone had inserted in, whether the young man did or not, inserted in a drug he was taking, fentanyl. Again, I hope you don't have any experience with knowing anyone, but this is the largest killer, people in that age category. And, I guess the other thing I think is most important is that since I spent more time with President Xi than any world leader has, just because we were vice presidents. His president was President Hu. I'm not making a joke. President Hu and President Obama thought we should get to know one another. Wasn't appropriate for the president of the United States to be dealing with the vice president. So we met, if I'm not mistaken, I think it was 68 hours of just face-to-face, just us and a simultaneous interpreter. So I think I know the man. I know his modus operandi. He's been. We have disagreements. He has a different view than I have on a lot of things, but he's been straight. देखिए मैं बात की अगर शी जिनपिंग की तो मैं उन्हें बेहतर तरीके से जानता हूं। हमारे असहमति हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रेट इन बातों को लेकर और ये जो बातें हैं वो आपसी बातचीत में रखी गई है। इसी पर उम्मीद जाहिर करते हुए जो बाइडेन any concern about anything between our nations or happening in our region, we should pick up the phone and call one another, and we'll take the call.
देखिए हमें फोन एक दूसरे का उठाना चाहिए। कम्युनिकेशन लाइंस के एक बार फिर से एस्टैब्लिश होने का जिक्र यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से किया जा रहा है। Mr. President, Judge Jay. Sorry, I apologize. You continue to stress the need for competition with China does not veer into conflict or competition. In the past 2 years, there have been 180 incidents of Chinese aggression against U.S. aircraft in the Pacific, and of course, ramped up military activity in the South China Sea. If that does not count as veering into competition, then what does? And did you issue any warnings against that? Well, first of all, none of it did end up in a conflict, number one. Number two, you may recall I did a few little things like get the Quad together, allow Australia to have access to new submarines, moving in the direction of work with the Philippines. So our actions speak louder than our words. He fully understands. देखिए हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्वाड का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है जो बाइडेन की तरफ से, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी सबमरीन्स को कैसे अलाउ किया जाए उसका जिक्र करते हुए जो बाइडेन इस सवाल के जवाब पर। And out that is there. This week you also said that we must protect hospitals. So when you weigh the target against the number of civilians inside the hospital, is the operation underway just? Well, look, we did discuss this, by the way, but we can't let it get out of control. Here's the situation. You have a circumstance where the first war crime is being committed by Hamas by having their headquarters. देखिए यहाँ पर इजराइल और हमास के युद्ध का जिक्र करते हुए और इसका जिक्र राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं कि सबसे पहले हमास की तरफ से जो मैस्केर किया गया, जो नरसंहार किया गया, They've gone in and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns. इसी का जिक्र करते हुए let me be precise. We've discussed the need for them to be incredibly careful. You have a circumstance where देखिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। ये बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई है और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या गाजा युद्ध को लेकर जो बाइडेन की कोई बातचीत हुई है चीनी राष्ट्रपति से, तो जिक्र हुआ। babies' heads off to burning women and children alive. And so the idea that they're going to just stop and not do anything is not realistic. This is not the carpet bombing. This is a different thing. They're going through these tunnels. They're going in the hospital. And if you notice, I was mildly preoccupied today. I apologize. I didn't see everything. But what I did see, whether I haven't had it confirmed yet, I am asked my team to answer the question. But what happened is they're also bringing in incubators. We're bringing in other देखिए यहाँ पर जो बाइडेन इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है गाजा पर, खास तौर पर अस्पतालों पर, इसका जिक्र कर रहे हैं। और जो कल अल शिफा पर भी हमला किया गया, इस पर भी जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि इजरायली सैनिक, जो जानकारी मुझे मिली है, इंक्यूबेटर्स लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों का ये अस्पताल है। इस पर जवाब देते हुए जो बाइडेन, Washington Post. I think that's right. Oh, there you are. Sorry, I couldn't see in the light. Mr. President, Israel's war in Gaza more than 11,000 Palestinians just for a month and I'm created. sorry, you're breaking up. I didn't. We did. Israel's war in Gaza has killed more than 11,000 Palestinians just over a month and created a humanitarian disaster. Israeli officials have said this war could take months or even years. Have you communicated to Prime Minister Netanyahu any sort of deadline or time frame for how long you are willing to support Israel? देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि गाजा में 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि 1 साल तक जंग चल सकती है, तो ऐसे में क्या बातचीत पीएम नेतन्याहू से हुई है? Working backwards, forward. Look, I have the last 4 hours, but we've gotten great cooperation from the Qataris. I've spoken with them as well a number of times. I think the pause and that the Israelis have agreed to
देखिए, मुझे लगता है कि इस युद्ध में अभी एक पॉज यानी कि युद्ध विराम का जिक्र कर रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है मौजूदा हालात में। I am mildly hopeful. I'm mildly hopeful. With regard to when is this going to stop, I think it's going to stop when when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and देखिए, बहुत बड़ी बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई है, जो सवाल पूछा गया कि आखिर कब ये युद्ध खत्म होगा, इस पर जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे लगता है कि युद्ध तब जाकर समाप्त होगा जब हमास की कैपेसिटी, क्षमता ऐसी ना रह जाए, पूरी तरह से वो क्षमताहीन हो जाए कि वो जिस तरह से इजराइल में उसने हमला किया वैसा हमला फिर से ना कर पाए, ऐसा नरसंहार ना कर पाए। तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। To use as much caution as they can in going after their targets. इसके अलावा इजरायली फोर्स को संभल कर अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। इस बात का जिक्र भी जो बाइडेन कर रहे हैं सवाल के जवाब में। And this is a terrible dilemma. So what do you do? I think that Israel is also taking risks themselves about their folks being killed and one-to-one going through these hospital rooms, hospital halls. But one thing has been established is that Hamas does have headquarters, weapons, materiel below this hospital. देखिए, अस्पतालों में जाकर जिस तरह से इजरायली सेना ने हमला किया है, इसके जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1-to-1 फाइट हमास के साथ हो, और ये बात भी क्लियर है कि किस तरह से हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है, अस्पतालों के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, इसका भी जिक्र जो बाइडेन कर रहे हैं। But I think the only ultimate answer here is a two-state solution. It's real. We got to get to the point where there is an ability to be able to even talk without worrying about whether or not we're just dealing with, they're dealing with Hamas that's going to engage in the same activities they did over the past, on the 7th. So it's, but I can't tell, I'm not a fortune teller, I can't tell you how long it's going to last. But I can tell you, I don't think it'll... देखिए, मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, लेकिन ये जरूर दो देशों का मसला है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हमास की तरफ से की गई थी 7 तारीख को, और इसके बाद आज के हालात हैं। I think you're going to see efforts to bring along, well, I shouldn't go into anymore because that's been things I've been negotiating with Arab countries and others about what... इसके साथ-साथ अरब कंट्रीज के साथ भी जो बातचीत है वो लगातार इस मामले पर जारी है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। When Hamas said they plan on doing the same thing again, what they did on the 7th. They're going to go in, they want to slaughter Israelis. They want to do it again. And they've said it out loud. They're not kidding about it. They're not backing off. And so I just asked a rhetorical question. I wonder what we would do if that were the case. देखिए, हम IDF के साथ हैं, इजरायली फोर्स के साथ हैं, क्योंकि हमास आगे से ऐसा कुछ ना करे जो ऐसा नरसंहार उसने किया, फिर से इजरायलियों को ना मारे, ये देखना बहुत जरूरी है। Coming to help you, to get you out. I don't mean sending military in to get them. Is that what you thought I might mean? देखिए, मिलिट्री तौर पर, सैन्य तौर पर लगातार हमारी जो मदद है वो आपके साथ है। On our mind every single day, 5-6 times a day, I'm working on how I can be helpful in getting the hostages released and have a... और इसके अलावा लगातार हम इस बात पर भी मदद कर रहे हैं कि कैसे जो बंधक हैं उनको रिहा कराया जाए। Between 50 and 100 hostages there, we think. मुझे लगता है 50 से लेकर 100 जो जितनी भी संख्या में वहां पर हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी वहां से रिहा कराना बहुत जरूरी है। Can you detail for us what kind of evidence the U.S. has seen that Hamas has a command center under Al-Shifa Hospital? No, I can't tell you. I won't tell you. Do you feel absolutely confident based on what you know that that is the truth? Yes. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year.
Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Anyway, we must तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है गाजा युद्ध को लेकर। गाजा में युद्ध का अंत कब होगा? जब हमास का अंत होगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया। बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, अरब कंट्रीज से हमारी बातचीत जारी है। इसके अलावा अस्पताल के नीचे सुरंगें हैं, अस्पताल के नीचे ठिकाना बना रखा है हमास ने। ये बात भी कही गई है, इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ हम हैं। जब तक हमास इस हालत में नहीं पहुंच जाता, हमास का अंत नहीं हो जाता कि वो फिर से अपना सर ना उठाए इजराइल के खिलाफ, फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला ना करे। ये बहुत बड़ी बात कही है। हमास ने 7 अक्टूबर को बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन युद्ध में एक पॉज भी जरूरी है। यह भी कहा गया, जो आम लोग मारे जा रहे हैं उस पर भी चिंता जाहिर की गई। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही गई। एक तरफ जो बाइडेन चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, एक तरफ इस युद्ध में पॉज की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं जब तक हमास का अंत नहीं होगा तब तक युद्ध चलता रहेगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेरर अटैक था। जिस तरीके से नरसंहार अनअनाउंस नरसंहार किया था और बच्चे और महिलाएं ज़्यादा सफ़र की थी, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको ख़त्म करने में रास्ते में जो आ रहा है, बहुत लोग, बच्चे और महिलाएं, अस्पताल में अटैक हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं। ये नेचुरली एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये एक समझने की, सोचने की विषय है कि ये सही नहीं है। लेकिन इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है? जहाँ तक देखा जाए, इजराइल कोशिश कर रहा है कि लोग खाली कर दें, लेकिन अस्पताल में बीमार है वो भी खाली नहीं कर पा रहे हैं। तो यही देखा जाएगा कि हमास को भी ख़त्म करना है और उसे बचाना है। तो एक मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। और ये कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये हमास के खिलाफ वॉर है, इसमें कुछ लोग और। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो इजरायली सेना ने अस्पताल पर हमला बोला, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ है, बाकायदा इस पर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। अभी आपने भी सुना कि कैसे जो बाइडेन ने बोला कि जब अस्पताल में पहुंचा, अल-शिफा अस्पताल जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर इजरायली सेना दवाइयां लेकर पहुंची, वहां पर इंक्यूबेटर्स लेकर पहुंची, यानी डिफेंड किया जा रहा है। करुणा, ये अटैक जो है अस्पताल पर लग रहा है। हाँ। लेकिन बाइडेन जो कहना चाहते हैं, ये अटैक अस्पताल पर नहीं है। ये अस्पताल के नीचे जो उनका मेन कमांड सेंटर है, जो इक्विपमेंट डिपो है, जो सामान रखा हुआ, उस पर अटैक है। अब इसको अटैक करने के लिए अस्पताल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसमें सही है क्या गलत है? फ्रॉम इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही है। अब हमास को ख़त्म करना तो यूएस के इंटरेस्ट में भी है, और जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूएस के इंटरेस्ट में। इसको ख़त्म करने में थोड़ा नुकसान ख़त्म करना पड़ेगा। और इंटरफेरेंस जो है, ये अस्पताल जो है, ये रास्ते में ये शील्ड यूज़ किया जा रहा है। तो हमास को लोग ये नहीं कर पा रहे हैं कि आप सामने से लड़ो, बल्कि ये मरीज और डॉक्टर्स को शील्ड बना के मत लड़ो। अगर ये लड़ाई अगर फेयर लड़नी है तो उस तरीके से लड़ाई की जा सकती है। लेकिन अगर चाहे कि हमास को भी ख़त्म ना कर पाएँ, ख़त्म कर दें और ये ना हो, ये करीब करीब असंभव है। इसकी चांसेस, प्रोबेबिलिटी करीब ना के बराबर है। हाँ। तो इजराइल को भी बाइडेन ये नहीं कह सकते कि आप हमास को मत ख़त्म करो। हाँ। हमास को नहीं ख़त्म करो, तो हमास को ख़त्म तो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे देश, पूरे विश्व के लिए भी आतंक की एक्टिविटी जो हमेशा हो रही है, ये सारे देश सफ़र कर रहे हैं, इसको बंद करने के लिए हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को से जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव सर, एक लाइन में ये बात समझ में आ रही है क्या कि ये युद्ध अभी फिलहाल तो खत्म नहीं होने वाला और ज्यादा बढ़ेगा? और क्योंकि यहां कोई डेडलाइन भी नहीं बताई है, जो बाइडेन ने साफ कहा कि मैं तो अभी नहीं बता सकता आज की तारीख में कि किस तारीख को या कब जाकर युद्ध खत्म होगा, कितना वक्त लगेगा। करुणा, मैं दो बातें कहना चाहूंगा साफ साफ। पहली बात यह है कि अगर हमास के खिलाफ ये युद्ध रोक दिया गया, हाँ, तो ये घुटने टेकने वाली बात होगी आतंक के सामने। हाँ, जो नहीं किया जा सकता आजकल की परिस्थिति में, जो विश्व की स्थिति है। और दूसरी बात जो आपने उठाई थी कि ये मिलिटरली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर कोई सबूत मिलते हैं कि उस एरिया को, अस्पताल को, मस्जिद को या किसी भी को, अगर आप असला मिलता है, सैनिक मिलते हैं और बाकी साजो सामान मिलता है, तो वो वैलिड मिलिट्री टारगेट बन जाता है। लेकिन आप देखिए, जो बाइडेन ने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा इसको हम कारपेट बॉम्ब नहीं कर रहे हैं,
हम इसके ऊपर कमांडो ऑपरेशन कर रहे हैं, लोग इंक्यूबेटर्स के साथ जा रहे हैं, बाकी चीजों के साथ जा रहे हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन आतंकियों को हम जरूर खत्म करेंगे। और जहां तक यूएन वैलिडिटी का सवाल है, तो जिस तरह के साजो सामान जो वहां से एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये वैलिड टारगेट बन जाता है। और जैसा कि अभी आपने बोला कि इसमें जो अस्पताल के मरीजों को, डॉक्टर्स को, अस्पताल के साजो सामान को जो शील्ड बना के आप काम कर रहे हैं, वो अपने आप में आतंकियों के सामने एक नई तरह की सोच पैदा करती है। तो ये जरूर खत्म करना पड़ेगा कि इस तरह की सोच नहीं चलेगी। और हमास, देखिए हमास ने इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बावजूद अटैक कर सके इजराइल के ऊपर, तो अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर से जो टनल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अगर उसको नष्ट नहीं किया जाता है, तो ये जो मॉन्स्टर है ये खत्म नहीं हो सकता। तो ये चीज चलती चाहे बातें कितनी भी हो। ठीक है पीके श्रीवास्तव सर, आप हमारे साथ बने रहिए। शरदेंदु सर, लेकिन इस बीच अमेरिका में जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच जो महामुलाकात हुई, इसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें थी। जिस बात को लेकर आशंका थी, मुलाकात में वही हुआ। चीन ने फिर से ताइवान का मुद्दा छेड़ा तो अमेरिका ने उसे ईरान का नाम लेकर आईना दिखाया। ताइवान और ईरान नाम जब आया तो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तर कोरिया और हमास तक की बात छिड़ गई। किसी भी मुद्दे पर दोनों देश एक राय नहीं बना सके। अब यह तय है कि अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ेगी, टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और चीन अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ और आगे जाएगा, जिससे अमेरिकी हितों का नुकसान होगा और यह टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ले जाएगा। ये संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे, यानी कि आम सहमति बनती उससे ज्यादा होता हुआ यह नजर आ रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर टकराव नजर आया है। और देखिए उसमें से एक मुद्दा क्या है, ताइवान का। ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका फिर से आमने सामने टकराए। बाइडेन से मुलाकात में जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया। ताइवान को हथियार देना बंद करे यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न उठाया गया। ताइवान की आजादी का समर्थन ना करे यूएस। तो दो बातें कही गई हैं। एक तरफ अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा, जो बाइडेन ने साफ कहा कि वो ताइवान के साथ है, लेकिन साथ ही साथ वन चाइना पॉलिसी को लेकर भी उनके साथ है, यानी कि उस स्टैंड में कोई भी बदलाव नहीं आए। लेकिन ताइवान को जो उसका सपोर्ट है मिलिट्रीली या फिर तमाम सपोर्ट, ये खत्म नहीं होंगे। ताइवान के मुद्दे पर बोले हैं जो बाइडेन, ताइवान से संबंधों पर हमेशा हमारा जोर है और रहेगा। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, ताइवान चुनाव पर भी बात हुई। अमेरिका एक चीन के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है। वन चाइना की जो पॉलिसी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अमेरिका चीन के साझा मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन ताइवान को लेकर ये क्लियर करते हुए नजर आए हैं कि बाकायदा हमने ये बात चीन के सामने रख दी कि जो चुनाव होने हैं ताइवान के अंदर अगले साल, उसे होने दिया जाए। यानी ताइवान को लेकर भी, ताइवान की अगर बात की जाए बतौर एक स्टेट भी अगर हम बात करें, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसके साथ अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, जिनपिंग से जो बाइडेन ने क्या कहा ईरान को लेकर, ईरान से बात करे चीन। जो बाइडेन ने यह कहा मिडिल ईस्ट को ना भड़काए चीन। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया तो चीन जिसका एक बड़ा स्टेक, जिसका अगर बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बड़ा दाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आता है और खुद को लगातार वो मिडिल ईस्ट में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो बाइडेन ने यह भी कहा कि वो चीन, वो ड्रैगन जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान को इस तरह से समर्थन ना करे और समझाए और मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात है उसे और ज्यादा ना भड़काए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे हमास का हमला हुआ जो इजराइल के खिलाफ था, इसमें भी ईरान का हाथ सामने आया, किस तरह से ईरान खड़ा हुआ नजर आया। या फिर अभी भी हम बात करें हिजबुल्लाह से लेकर हमास की मदद करना हर तरीके से, इसमें भी ईरान के रोल की बात सामने आ रही है। तो और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपको बताएं। अमेरिका में जिनपिंग ने एक तरफ ताइवान का मुद्दा उठाया तो इसके जवाब में जो बाइडेन ने ईरान का मुद्दा छेड़ दिया। तो अब हुआ क्या है, ईरान पर क्या बोला है अमेरिका, पहले आप ये देख ली जो बाइडेन ने क्या बोला। दो टूक बाइडेन की जिनपिंग को सलाह क्या सामने आई है वो आप देखिए। जो बाइडेन की तरफ से ईरान को लेकर
जो बात कही गई है वो इस वक्त आपके सामने है। मिडिल ईस्ट पर चीन ईरान को बढ़ावा ना दे, ये बात कह दी गई, ये सलाह दी गई ताकि जो हालात है वो कंट्रोल में आए। इसके साथ ही चीन के समर्थन से मिडिल ईस्ट में बिगड़ सकते हैं और भी ज्यादा हालात अगर इसी तरह से ईरान के साथ खड़ा रहा और उसको लगातार उकसाता रहा चीन, तो इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे। अमेरिका चीन से अस्थिर संबंध ठीक करना चाहता है, यह बात अभी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बाइडेन की तरफ से कही गई। एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर रहे हैं। जिनपिंग ने बाइडेन से क्या कहा यह आप जानिए। अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता है। तो यह भी शी जिनपिंग ने कहा, क्योंकि उसको लगता है और जो होता हुआ आ रहा है, जिस तरह से तमाम सैंक्शंस लगाए गए चाइना के ऊपर, इसके बाद शी जिनपिंग ने इस पर चिंता जाहिर की और कहा अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कि अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ हमारी नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता।